Okay, this was 102 question. In this, you might have doubt about this capacitor. What happened to this? Because we are taken directly from here to we are gone from here to here. Since this is the parallel connection, you can shift it this side. So this is not making any difference in this potential drop here and here. So this was parallel connection, can be brought this side. And then this is independent circuit having the 10-volt supply. You can treat it. Problem comes when here was the capacitance, then this cannot be treated as a independent circuit. Now you have to find out this potential difference first by taking into account. Suppose यहाँ पर भी कुछ होता कैपेसिटर, तब फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये सर्किट, है ना. फिर हम इसमें ड्रॉप निकालना पड़ता है, पहले पूरा सर्किट का कैपेसिटेंस निकालना पड़ता है इंक्लूडिंग दिस. फिर यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पे मिल जाता है हमें पोटेंशियल कितना बचा है यहाँ पर. देन दिस कैन बी शिफ्टेड दिस साइड, है ना. ऐसे शिफ्ट कर लो उसको. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो कैपेसिटेंस है ना. तो just this can be brought this side, making no difference in this side. Clear? Because that day we didn't discuss this capacitance because this was in parallel. Just we can leave it, or we can bring it this side, and we can see the circuit of this side. Clear? So this was the question number 2. What about 102? This was what about the last question of this 103? Could you get that assignment of current electricity? Have you downloaded it? Yesterday I posted it in the group. Go through that, download it, and we'll discuss some of the questions today. What about this question? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक नया क्वेश्चन करते हैं. सपोज इफ आई गिव यू दिस द कंडक्टिंग प्लेट्स. ये क्या है? कंडक्टिंग प्लेट्स है. ओके, एक को हमने 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, दूसरे को 4 माइक्रोकूलम चार्ज दिया. What will be the charge distribution on one surface 1, surface 2, surface 3, surface 4? Can somebody tell how much will be the charge on each surface? How do we find out? Or if you know the answer, you just reply. Yes, Ayush. What will be the answer? Reply, Ayush, unmute and do it. Tell me. Are you there? Yes, sir. बोलो क्या चल रहा है वहां पर अभी? What's going on there? कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर चल रहा है? बोलो कैसे करेंगे इसको? Sir, can you please show the question again? नहीं, ये वाला क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग प्लेट से we are given 2 microcoulomb and to this 4 microcoulomb, find charges on each surface. बोलो. How was taught to you this in the? Anybody else? How to find out this? तो इसमें क्या करेंगे? Let Q1, Q2, Q3, Q4 चार्ज ले लेंगे. एरिया इज सेम, आइडेंटिकल प्लेट्स है. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद कैसे
how to find out? Just quickly tell me. Suppose एक point यहाँ पे लिया inside the conducting plate. सब can you see this here? रेड से करता हूँ. यहाँ पे लेंगे, इसकी फील्ड लिखेंगे, इधर आएगी, ये Q2 इसकी इधर आएगी, Q3 की भी इधर आएगी, Q4 की भी. सबको हमने पॉजिटिव ले लिया. पॉजिटिव ही रहेंगे वैसे, है ना? नहीं भी है, माइनस भी दिया ना, तभी भी Q1 Q2 पॉजिटिव लेने. सबकी फील्ड लिख के फर्स्ट सरफेस की, सेकंड सरफेस की, तीसरी सरफेस की, चौथी सरफेस इज इक्वल टू 0 कर लो. ए तो नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? इक्वेशन बन जाएगी Q1 Q2 Q3 Q4, है ना? इक्वेशन बन जाएगी. फिर ऐसे ही यहाँ भी करेंगे इसके अंदर, है ना? एंड एक इक्वेशन इसकी भी रहेगी, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 is equal to 2 plus 4, 6 आ जाएगा. So after solving the equation, what do we get? जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अभी हम नहीं लिख रहे, जस्ट आई एम टेलिंग यू डायरेक्ट मेथड. फर्स्ट सरफेस का एंड लास्ट सरफेस का इक्वल आता है, दैट इज टोटल का हाफ आता है. 2 plus 4/2, दैट 3 माइक्रोकूलम. ठीक है, इस पे 3 आएगा. और इनर सरफेस भी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन टोटल 3 है, तो यहाँ पे हमने दिया तो 2 ही है, तो इधर कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन? बोलो. वी आर गिवन 2 माइक्रोकूलम, बट वी आर गेटिंग फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस 3. यहाँ पे कितना आएगा बोलो? अदर साइड पे कितना आएगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस 1. -1. 4 नहीं हो जाएगा. इफ यू राइट +1 तो 3 + 1 4 हो गया, बट दिया तो हमने 2 ही है, तो -1 लिखना पड़ेगा. -1 माइक्रोकूलम, इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, दोनों ऐड करके देखो 3 - 1 = 2 आ गया. इसमें 4 दिया, 3 इधर है, तो अंदर की साइड में कितना होगा? +1 माइक्रो, है ना? टोटल 4 हो रहा है. 1 + 3 = 4, है ना? तो ये एक टेक्निक है. 3 प्लेट्स होंगी तो वहां भी ऐसे ही करेंगे, सबके ऐड करके फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस पर, बट इट इज जस्ट कमिंग फ्रॉम द फील्ड 0. नेट फील्ड 0 इनसाइड से आता है. नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग प्लेट इज 0. तो फर्स्ट एंड लास्ट का तो इक्वल आ जाता है. उसकी फर्स्ट एंड लास्ट की फील्ड देखो यहाँ पे 0 हो जाएगी. देखो यहाँ पे अगर आप काउंट करो, फर्स्ट की इधर आएगी और लास्ट वाले की इधर आएगी फील्ड, रेडियली अवे फ्रॉम इट. इनकी तो 0 हो गई. इनकी 0 कैसे हो जाएगी? माइनस वाले की इधर आएगी और प्लस वाले की इधर आएगी, सबकी 0 हो जाएगी, इसके अंदर भी इसके अंदर भी. ठीक है, क्या बताया मैंने? फर्स्ट एंड लास्ट पर टोटल का हाफ, एंड बाकी इंटीरियर पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. इंटीरियर पे एक पॉइंट और नोट करो, देखो अब इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है ना. इक्वल एंड अपोजिट आने से ही कैंसलिंग इफेक्ट आएगा. देखो ये एक प्लस एक माइनस, एक माइनस से एंड फर्स्ट एंड लास्ट पर इक्वल होंगे. तो इसमें देखते क्या है, इसमें भी वही लॉजिक रहेगा. फर्स्ट एंड लास्ट वाला तो इक्वल हो जाएगा, ये वाले भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे, देन ओनली नेट फील्ड विल बी 0 इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, सपोज तो इन्होंने प्लस, ये तो इसका तो छोड़ ही दो, इनका ले लो. Q2 का फील्ड, अभी इसकी फील्ड लिख लो. हमें क्या निकालना? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो यहाँ पर. अभी इन्होंने इसमें पॉजिटिव है, तो इसकी फील्ड इसके अंदर, इनके अंदर इसकी तो अपोजिट आ जाती है, वो तो कैंसिल हो जाएगी. इन दोनों की एक ही डायरेक्शन, इन दोनों की निकाल लो. एज पर द पॉजिटिव चार्ज इसकी फील्ड ये कितनी होगी? फील्ड E2 will be
Q2 upon 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला ये क्या है Q3, तो इसकी E3 लिख दो, Q3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव दिखाया, ये भी पॉजिटिव दिखाया, तो अपोजिट आएगी फील्ड। नेट फील्ड विल बी Q2 माइनस Q3, और नीचे कॉमन ले लो। अभी V इक्वल टू ED होता है, और यहाँ पे A भी आता है ना, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। तो अभी लिख लो E नेट इज Q2 माइनस Q3, D ऊपर है, 2 भी है, एप्सिलॉन नॉट A, दैट विल बी नीचे C आ जाएगा, Q2 माइनस Q3, 2, दिस टर्म इज 1 बाई C, C यहाँ पे आ जाएगा। अभी एज वी हैव सीन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये Q होगा, ये माइनस Q होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2Q बाई 2C, 2 भी चला जाएगा बाद में, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, हमें पता है। तो अगर सपोज ये इसको Q लिया तो इसको माइनस Q लेना पड़ेगा, दिस विल बी 2Q, दिस इज 2C, 2C चला जाएगा, क्या बचेगा Q बाई C, दैट इज इक्वल टू V होता है। But in terms of Q2 and Q3, we have to write it like this. All right, clear this? Do you want to ask anything here or niche? Come on, no problem. No, sir. Okay, this was the last question. Few more questions we'll do, then we'll switch on to the current electricity. All right. ये क्वेश्चन पेंडिंग था, कैसे करेंगे इसको, कर लिया था क्या बाद में? सर ये हो गया था। रेजिस्टेंस वाला हो गया था, हम लोगों ने इसका छोड़ दिया था, रेजिस्टेंस वाला किया था हम लोगों ने, दिस वाज नॉट डन। कहाँ से सर्किट आएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, सपोज हमने यहाँ पे प्लस चार्ज लिया, यहाँ पे माइनस लिया, ऑफकोर्स प्लस होगा, तो ये बैटरी का इफेक्ट हम ऐसे बन सकते हैं, इसमें बैटरी, दिस बैटरी इज डोमिनेटिंग एंड प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव हियर, नेगेटिव हियर। तो इसका भी देखो पॉजिटिव इधर दिख रहा है, तो वी कैन टेक प्लस हियर। तो यहाँ से चलो, यहाँ से स्टार्ट करो कैपेसिटेंस से, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है कैपेसिटेंस के क्रॉस, डिफरेंस इज Q बाई C, और आगे गए यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, तो माइनस V, बाकी कुछ भी नहीं है, इक्वल टू 0, Q इक्वल टू CV आ गया, C कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, V कितना है 10, Q इक्वल टू 60
microcoulomb. That's all. Clear? You have to find the circuit having battery only. because दूसरा कैपेसिटेंस आएगा तो Q2 भी आ जाएगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा. तो one capacitance or one resistance, remaining others should be batteries or cells. If you are able to pick up that particular part of the circuit, then only you can solve it. Otherwise, you will be just held up there because of want of the other equation. समझा सबको? ऐसा हमने रेजिस्टेंस के लिए किया था. डू यू रिमेम्बर? उसमें more than one batteries were obtained, no problem. Batteries were added up उनका according to Kirchhoff law. We added up all the potentials. All right. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any problem in this question? Come on quickly. So far in both the questions, you can ask it quickly. No, sir. Okay. So what about this question? ये किया था हम लोगों ने क्लास में. Yes, sir. उसमें क्लास में किया था हमने रेजिस्टेंस 1 ओम है. अभी मैंने R ओम दे दिया. तो कितना आएगा? If you remember, R A C डैश हम लोगों ने निकाला था किरचॉफ लॉ से 5/6 ओम. बट R है तो R भी आ जाएगा. वहां पे 1 ओम था, ये 1 था, तो R will be 1. यहाँ पे in general it will be like 5R/6. R की value you can put it whatever is given. It was given 1 ohm in this, so you can put it 1. But what about this? RAC, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है. ये 3 रेजिस्टेंस के गैप में था. तो भाई एक था यहाँ, एक क्या है, एक बॉडी डायगोनल था. अभी फेस डायगोनल है. यहाँ एक कनेक्शन यहाँ करो, another you make it here. फेस डायगोनल के क्रॉस कितना आएगा? Again Kirchhoff law, but this becomes very lengthy. You will be just very busy to solve this. Therefore, they don't ask. But if you are able to solve it, it will be coming 3/4R. So better you can remember for competition point of view, you remember it. वहाँ पे तो solve करके दिखाना नहीं है हमें. But how it is done, I can show you. I'll show you the solution, not now. 3/4 आएगा. और if साइड के क्रॉस है, यहाँ पे कनेक्शन करो बैटरी का ऐसे AB, then it comes 7/12R. Could you get it? ये भी वही किरचॉफ लॉ से you have to follow. या फिर इसके दूसरे बुक्स में दूसरे मेथड भी रहते हैं. By choosing the equipotential points and then joining them together and then seeing the circuit. But any competition point of view, you have to get the right answer. That's all. You can remember this much. आगे समझ में? समझ में मतलब इसकी आंसर समझ में आएगा कैसे लिखेंगे. बॉडी डायगोनल का तो हमने डेरिवेशन किया था. फेस डायगोनल का, फेस डायगोनल यहाँ भी हो सकता है. ये वाला पॉइंट AB भी हो सकता है. इधर से भी हो सकता है. ये वाला AD भी हो सकता है. फॉर कैपेसिटेंस ये रेजिस्टेंस के लिए था. फॉर R, फॉर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कनेक्टेड है तो इसका आंसर 6/5 हो जाएगा. डिजिट इंटरचेंज हो जाती है. 6 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा.
दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, RAC 4/3 हो जाता है। तीसरे वाले की भी डिजिट इंटरचेंज हो जाएगी। कैपेसिटेंस के लिए भी किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं, एंड आंसर विल बी whatever we are getting in the resistance, digits are interchanged, denominator and numerator की। This was asked once in I think JEE advanced में पूछा था। You can just easily remember without solving. You can just do it. Multiple. It was a part of some question. So you can note down. We can just prove it also later on कभी। This you should be able to prove it, है ना? क्लास में किया हुआ है। उन लोगों ने कितना करंट लिया था, यहाँ पे 3i लिया था, i इधर गया, सिमेट्रिक है, i इसमें जाएगा, फिर इसमें किरचॉफ लॉ लगा दिया था हम लोगों ने। एक ही क्वेश्चन से काम हो गया था। Okay, no problem. No, sir. All right. Let's see two more questions, then current electricity. How to do this question? Which formula we have to use? Go through. Come on, tell me which formula we are required to do this. Quickly, no, without taking much time. Anybody? अपराजिता बताइए। शाश्वत, हाँ बोलो प्राजिता। Sir, सॉरी, नहीं चित्रिशा बताइए। एक मिनट जस्ट वेट। चित्रिशा, ओके ठीक है। एनीबॉडी हु वाज टेलिंग? sir, man. Sir, हाँ, बोलो। V is equal to minus EDL. हाँ, डेल्टा वी, डीवी इज इक्वल टू माइनस, dV. नहीं डीवी तो ये डीवी हो गया ना, उसके बाद Minus EDL. माइनस ईडीएल, तो ईडीएक्स लिखेंगे यहाँ पे, एक्स है ना, यहाँ पे डी। तो यहाँ पर अगर एक्स है तो एक्स लिखो, वाई है तो वाई लिखो, जेड है तो जेड लिखो, अदरवाइज डी आर लिखो। अगर तीनों ये एक्स वाई जेड भी है तो डी आर लिखेंगे। फिर पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ता है ना। दिस इज इजी, पार्शियल डेरिवेटिव वाला एक क्वेश्चन था इस पे, दिस इज कंपैरेटिवली इजी। इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 30x² dx। अभी इंटीग्रेशन कर दो, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पर जब ओरिजिन है 0 है, ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वहां पे v0 दिया है, और ऊपर कहाँ पे निकलना है, 2 मीटर पर, 2 मीटर पर निकालना है। तो यहाँ पे 2 लिखो, वहां पे v दिया हुआ है, v ए पॉइंट है, ए दिया हुआ है वहां पर, v ए दैट 2 मीटर डिस्टेंस। बस, तो ये लेफ्ट साइड तो वी ए माइनस v0 आ जाएगी, और ये माइनस 30x³ आ जाएगी। वैल्यू भी पुट करना है लिमिट्स की, 0 to 2। तो कितना आ रहा है देखो, -30 -80 नीचे, आ रहा है।
हाँ माइनस नीचे 3 है तो 10 बच जाएगा, और ये 2 क्यूब तो 8 -80 जूल्स पर कूलम। विच ऑप्शन सी? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने 1 और 2 सिमिलर टू दैट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ 1 है, 1 का v आ जाएगा, फिर अपर लिमिट va और v नॉट, तो va माइनस v नॉट, ऐसे लेफ्ट साइड में। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। No, sir. Okay, just make it quick. Hmm. Okay, can I shift it now? Now next one also I think we did it in the class. Again do it if done, no problem. Practice करते उसको। This one देखो, ये क्या बोल रहा है? Charge Q is distributed uniformly over the long rod AB, this one, of length L, and electric potential at point O lying at distance L from the end A, ये L distance यहाँ पर निकलना, ये पॉइंट O है, पोटेंशियल निकलना है इसका, विच फार्मूला? How to get it? Come on, quick response. For example, suppose, हाँ बोलो। V is equal to KQ by L. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे dv इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू बाई आर, डी क्यू बाई एक्स ले लेते हैं, क्योंकि इट इज एक्सटेंडेड, वी कैन नॉट राइट इट डायरेक्ट। पॉइंट चार्ज क्या होता है? v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, दिस इज नॉट द पॉइंट चार्ज। व्हाट नेक्स्ट? डी क्यू क्या, dv क्या है, डी क्यू क्या है? वी आर टेकिंग द एलिमेंट्री चार्ज हियर, यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया हमने, एलिमेंट्री चार्ज, ये डी क्यू, इसकी जो लेंथ है डी 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 एक्स है, कितनी डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर। पॉइंट चार्ज जैसा फॉर्मूला लिख दिया बस इसको। डी क्यू क्या होता है? चार्ज डी क्यू कैसे लिखते हैं फिर हम? यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो, डी क्यू क्या होगा? डी क्यू विल बी डी क्यू विल बी एक चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर का चार्ज क्यू बाई एल हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी है? डी एक्स लेंथ है। डी क्यू विल बी, यहाँ पे देखो, डी क्यू विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, कंसीडर्ड लेंथ। ये 1 मीटर का चार्ज है, तो dx मीटर पर कितना है? मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी द चार्ज ऑन dx मीटर। यूनिटरी मेथड सिंपल, L पर Q तो 1 मीटर पर Q बाई L, therefore dx मीटर पर dq, like this. Now x, what next? इंटीग्रेशन, अभी दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इधर भी, ये तो v हो जाएगा, k बाहर, q बाई एल भी बाहर, बचा क्या? इसका इंटीग्रेशन लिमिट l से लेकर 2l, देखो dx ये को यहाँ तक आ सकता है, ये एलिमेंट्री पार्ट कैन कम अप टू हियर एंड गो अप टू हियर, तो l से लेकर 2l तक लिमिट है इसका।
क्या होगा बोलो, के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एल भी पुट कर दो, और ये कितना आएगा, ln x एल एन एक्स आएगा, तो उसकी अपर लिमिट एल एन टू एल माइनस एल एन एल, तो 12/L 2 बचेगा, तो एल एन टू डबल, यहाँ पे डबल वैल्यू है ना इसकी, तो एल एन टू बचेगा यहाँ, 12/L, एल विल गो, 2 विल रिमेन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है क्या? क्लियर? यहाँ पे क्या है, एक मिनट, व्हाट इज दिस? यस क्या है, मिस प्रिंट है वो, ठीक है। Okay, last question, then we switch on to the current electricity. ये वाला क्वेश्चन बताओ, what about this one? Let rho is equal to q upon pi r square r to the power 4 into r be the charge density distribution for the solid sphere of radius r and total charge q for the point P inside the sphere at distance r1 from the center of the sphere, the magnitude of electric field. कोई point P है यहाँ पर, उसमें हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सरफेस, ये रो क्या होता है सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है ना। ये दे शुड मेंशन क्लियरली, कभी कभी वो मेंशन नहीं करते। डायमेंशन वॉल्यूम की है तो एक आर इधर है, नीचे R4 है, तो R क्यूब बचेगा। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कैसे करें, क्या करें बोलो। सपोज पॉइंट P यहाँ पर है, उसके अंदर कितना चार्ज आएगा, चार्ज जितना अंदर होता है उसी की फील्ड रहती है बस, नहीं, हाँ ठीक है, उससे उससे फील्ड निकाल सकते हैं हम। अंदर का चार्ज मैटर करता है, इतना चार्ज है, गॉसेस लॉ लगा लो उसके लिए। चार्ज मिल जाए, पॉइंट P सपोज यहाँ पर है, उसके अंदर का चार्ज मिल जाए डिस्टेंस R1 पर, मतलब रेडियस R1 का। तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में हमने एक एलिमेंट्री रिंग ले लिया, रेडियस R और उसकी थिकनेस dr, उसका वॉल्यूम dv, एलिमेंट्री इसका एलिमेंट्री शेल हो जाएगा 1। तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज इन एलिमेंट्री spherical shell
स्फेरिकल स्ट्रिप बोल सकते हैं, स्ट्रिप भी नहीं बोलेंगे, एलिमेंट्री स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr। इसका चार्ज dq कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, रो इनटू इसका वॉल्यूम, ये शेल का वॉल्यूम। तो रो कितना है? ओके, रो बाद में लिख देते हैं, रो की वैल्यू ऊपर से। डीवी क्या है? 4 पाई, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर वाली सरफेस का, और इनटू थिकनेस डी आर। यहाँ पे ऐसे लिख देते, बहुत एलिमेंट्री थिकनेस है, तो वेरी 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 थिन है, डी आर टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अंदर वाली सरफेस का सरफेस एरिया लिख दिया, दिस विल एक्ट एज ए थिकनेस which is very small, dr is very small, so it will be this much volume। और ये वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, बाद में पुट कर देंगे इसको। अभी इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, पहले वैल्यू पुट कर देंगे। ये एक आर इसमें भी है देखो, और ये आर स्क्वायर है, तो आर क्यूब हो जाएगा। टोटल चार्ज निकालना है, इंटीग्रेट कर दो इसको, कांस्टेंट बाहर निकाल लो। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर R1 तक, क्योंकि उन्होंने बोला R1 तक चाहिए, R1 पर फील्ड चाहिए। R1 के अंदर तक जितना चार्ज आएगा वो फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये कितना हो जाएगा बोलो? Q अपॉन 4 R टू द पावर 4, ऊपर 4 पाई है, और ये R1 टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा। एक पावर बढ़ जाएगी, क्यूब का 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, ये कैंसिल, ये पाई नीचे से कैंसिल, नहीं पाई नीचे नहीं है, बस इतना ही है। तो ये आ गया Q। गॉसेस लॉ लगा दो, पॉइंट P यहाँ पे है, समझ लो। पॉइंट P इज हियर, इसके अंदर कितना था? गॉसेस लॉ E डॉट dl, नहीं क्या है गॉसेस लॉ बोलो? Q upon epsilon naught। right, EDS is equal to Q upon epsilon naught। तो E ds कितना आएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर। Q लिख दो, यहाँ से कितना आ रहा है? Q अपॉन पाई R1 टू द पावर, ऊपर से लिख दो, epsilon naught यहाँ रहेगा, और नीचे क्या है? 4 भी है, R की पावर 4 भी है, दिस वन। बस अभी अपना आंसर देगा। क्या कैंसिल हो रहा है? पाई इधर से कैंसिल हो रहा है क्या? ठीक है। 4 जो है कुछ प्रॉब्लम है क्या? सरफेस एरिया, ओके देखते हैं। ये स्क्वायर बचेगा, तो इधर भी है एक, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, नीचे नीचे क्या आएगा? 16 epsilon naught r to the power 4। देखो है क्या? 16 नहीं दिख रहा कहीं पे, इट हैज गॉन कैलकुलेशन एरर, कहीं पे गड़बड़ हो गई है। सर वो इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में पाई कैंसिल होना था। नहीं पाए तो, नीचे पाए नहीं है ना, पाए तो हमने यहाँ से कैंसिल करा है, नहीं वो डिजिट की प्रॉब्लम आ रही है। देखो ये देखो, ये वाला ऑप्शन नंबर क्या है? बी है, देखो यहाँ पे ये सही है,
ये सही है, ये सही है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन, 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 था, नहीं 4 नहीं था यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो पाई था है ना, यहाँ पे 4 नहीं था, देखो हमने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, देखो यहाँ यहाँ पर ये 4 आ गया है गलती से, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये ऊपर जो आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, तो 4 ही बचेगा। यस, यहाँ पे हमने एडिशनल 4 लिख दिया था जबकि इट वाज नॉट गिवन, ये 4 पाई ले लिया था हमने बाय मिस्टेक, तो 4 नहीं रहेगा। चार्ज निकाल लिया, अंदर वाला चार्ज ही फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अंदर R1 रेडियस तक कितना चार्ज आया, ये इंटीग्रेट करके हमने निकाल लिया। पहले हमने इतने एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए लिखा है, एलिमेंट्री शेल के लिए लिखा है, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, इसका स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, और यूनिट वॉल्यूम में दिया हुआ उन्होंने, वो हमें फॉलो करना है, वैल्यू पुट करके फिर हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक इतना सर इसके वो अंदर जो उसमें पाई भी तो आना चाहिए, 4 को हटा दिए तो। पाई इधर से कैंसिल हो रहा है लेफ्ट साइड से, ये वाला इसमें आएगा ना, 4 पाई आएगा इसका, ये पाई से कैंसिल ऑप्शंस हो। में एक्चुअली पाई आ रहा है अच्छा, उसमें। एक पाई बचा है क्या? एक मिनट देखता हूँ कहाँ पे बचा हुआ है, सर जहाँ एक से मिनट। 4 हटाया ना वहीं पे पाई आना था। अच्छा, ये वाला पाई, एक मिनट, एक मिनट, ये पाई तो है, और अच्छा, अच्छा पाई बचा है ना, नहीं तो ये पाई बचा है ना, एक नीचे भी है, एक यहाँ भी है ना, नीचे था एक है ना, सही है अभी। ये सर अभी सही है। हाँ, एक नीचे पाए था ये, अच्छा यहाँ पे हमें 4 का कंफ्यूजन हुआ था, हाँ, ये पाए ऊपर वाले पाए के साथ चला गया, ये तो ये वाला अभी बचा है, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, पाए भी लिख दो इसमें। ओके, ठीक है, तो दिस इसके लिए जस्ट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, थोड़ा सा स्टेप वाइज ये मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। ऑलराइट देन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं।